Hello and welcome to Legacy IS Academy. So in today's video, we are going to discuss about US and Ukraine relationship. ठीक है? If you see, very recently there has been exchange of some very harsh statements between US and Ukraine. ठीक है? And this is mostly after the change of government in USA. So US में डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद से US का stance towards Ukraine और US का stance towards Russia has changed. जो एक टाइम पे पोल्स अपार्ट रिलेशनशिप था, ये अब हेल्दी रिलेशनशिप दिखाई देने लगा है। और यूक्रेन जो कि यूएस लेड नेटो को ज्वाइन करने वाला था, ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप दिखाई देने लगा है। ठीक है, सो दैट इज हाउ थिंग्स चेंज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इट इज वेरी वेरी डायनामिक। ठीक है, talking about some of the harsh statements between US president and Ukrainian president, US president has said कि Ukrainian president is a dictator. He has called him a dictator and stated that he has refused to carry out elections. अब elections को लेकर के क्या controversy है that we will study, but all in all US president says that Ukrainian president ने elections यूक्रेन में नहीं करवाए। ठीक है, he has also stated, Donald Trump has also stated कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो हैं he manipulated Joe Biden, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनको मैनिपुलेट करके उनसे फंड्स निकलवाए, यूक्रेन वॉर में यूज किए और उसे मिस हैंडल किया, मतलब उसे मिस यूज किया गया। ठीक है, so mishandling of US aid, manipulated Joe Biden and he refused to carry out elections. So ultimately he calls him as a dictator. ठीक है, obviously इस तरीके के very harsh statement you one person one individual cannot expect from a friend. So there was a retaliation from Zelensky and he says that Trump operates within a disinformation bubble. ठीक है, which is also to some extent correct, क्योंकि ट्रंप का कहना था that he is a dictator and he is not very popular in Ukraine. Zelensky is no more very popular in Ukraine. ठीक है, although जो भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे थे अबाउट इलेक्शंस में किसके जीतने के चांसेस हैं, although elections were not conducted, but एक ओवरव्यू लिया जा रहा था, तो उसमें पॉपुलैरिटी ऑफ जेलेनेस्की हैज बीन वेरी वेरी हाई। ठीक है, सो जेलेनेस्की का ये कहना भी टू सम एक्सटेंट करेक्ट है that he has been living in a disinformation bubble. ठीक है, टॉकिंग अबाउट ये सारे एक्सचेंज ऑफ हार्श वर्ड्स शुरू कहां से हुए, वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम? सो ये स्टार्ट हुआ between US and Russia. Officials were negotiating after Trump had come to power कि वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे and they actually met at Saudi Arabia. US and Russia के officials they have met at Saudi Arabia. We'll be discussing that, the summary of that discussion briefly later on. But क्योंकि ये इस दोनों कंट्री के डिस्कशन में यूक्रेन को ही नहीं बुलाया गया, तो ऑब्वियसली यूक्रेन वाज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड अगेंस्ट दिस व्हाटएवर मीटिंग वाज गोइंग ऑन. So US रशिया के साथ मिल रहा था, officials were meeting and they had not involved neither European Union nor Ukraine to come and participate in this discussion. So obviously Ukraine was very much frustrated. ठीक है, now US has also blamed Kyiv for war escalations. Amongst the harsh exchange of statements, Donald Trump has also stated that Kyiv was responsible for escalation of war. इस वॉर को जो हम लोग बहुत पहले खत्म कर सकते थे, ये वॉर बढ़ाया है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने। ठीक है, सो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आई वुड से स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप चल रहे हैं बिटवीन यूएस एंड यूक्रेन करंटली। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस पार्ट, so elections were due in December in the month year 2024. ठीक है, अप्रैल में 2024 में इलेक्शंस ड्यू थे, बट यूक्रेन का कहना है कि बिकॉज वी वेर बिजी फाइटिंग वॉर सो वी कुड नॉट कंडक्ट इलेक्शंस, व्हिच इज कंप्लीटली लॉजिकल बिकॉज 2024 में यूक्रेन वाज ऑलरेडी इंडल्ज्ड इन वॉर, सो यूक्रेन वाज नॉट इन अ कंडीशन टू कैरी आउट इलेक्शंस. रशिया का कहना है कि आगे अगर आप पीस डील बात करना चाहते हो, इफ यूक्रेन एंड रशिया वांट्स टू टॉक पीस विद ईच अदर, वी वांट इलेक्शंस. ठीक है, यूक्रेन इज स्टेटिंग कि इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर होने के लिए वी नीड सम टाइम एंड इलेक्शंस 2024 में कंडक्ट नहीं किए जा सकते थे. ठीक है, सो रशिया एंड यूक्रेन आर आर डिफरेंट स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस. रशिया बोल रहा है कि आपको इलेक्शंस पहले ही कंडक्ट करा लेने थे, यूक्रेन बोल रहा है कि हम लोग उस समय इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करा सकते थे. रशिया बोल रहा है कि अब पीस के बारे में बात करने से पहले आप पहले इलेक्शंस करवाओ, यूक्रेन बोल रहा है कि पहले हम लोग पीस एस्टैब्लिश करें, लेट द वॉर एंड, ओनली आफ्टर दैट वी कैन टॉक अबाउट इलेक्शंस. ठीक है, सो यहाँ पे
आई वुड से डिस्पैरिटी आ गई है बिटवीन द व्यूज ऑफ यूक्रेन एंड रशिया। डिस्पैरिटी तो बहुत सारी थी, बट एक वाइड डिस्पैरिटी आ गई है, और इसमें यूएस का सपोर्ट रशिया की तरफ है रादर देन यूक्रेन की तरफ, विच वाज एन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, Germany and UK has stood in favor of Ukraine. Germany and UK has stated कि Ukraine is correct in its measures, कि ये इलेक्शंस के वॉर के बीच में इलेक्शंस नहीं पॉसिबल थे। ठीक है, so they have stood with in the support of Ukraine only. But talking about the communications, अभी क्या हो रहा है, आई वुड से 1 or 2 days पहले ही यूएस के डेलीगेशंस एंड रशिया के डेलीगेशंस, बोथ ऑफ देम हैड मेट इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, although यूक्रेन को भी सऊदी अरेबिया जाना था, but he had postponed that meeting because he was stating कि I don't want to be to project this to the world that I came as an extension of communication between US and Russia. No, US and Russia के किसी भी negotiations में Ukraine should have been called, and if you did not call me, so I will not be participating. So if I have to go to Riyadh, let me go 2 to 3 days later in my schedule. ठीक है, in the meantime Ukraine was visiting Turkey. अब यूक्रेन टर्की क्यों जा रहा था और क्या कम्युनिकेशन था, दैट अगेन इज अ पार्ट ऑफ लेटर डिस्कशन। बट रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या क्या बातें हुई, सॉरी रशिया और यूएस के बीच में क्या क्या बातें हुई विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन वॉर, दे हैव डिस्कस्ड अबाउट एंडिंग द यूक्रेन वॉर, दे डिड स्पीक अबाउट एंडिंग द यूक्रेन वॉर। ठीक है, एंड दे हैव स्टेटेड कि यूक्रेन, यूएस का कहना है कि यूक्रेन को नेटो का मेंबरशिप दिलवाना, because NATO or led by USA was trying to give membership to Ukraine. So that was a very big mistake of Biden's government. That was a very big mistake. That is what US is stating. ठीक है, Russia is also stating this fact कि under any conditions, आप इलेक्शन कराओ नहीं कराओ, पीस हो नहीं हो, under any condition we will not allow Ukraine to join NATO. Economics is a different thing. That is what the Russian president has said कि इकोनॉमिक्स इज अ डिफरेंट थिंग, आपको किसी भी कंट्री के साथ इकोनॉमिकली एंगेज करना है, यू कैन प्रोसीड, बट विद रिस्पेक्ट टू मिलिट्री एंड सिक्योरिटी आई कैन नॉट अलाउ वन एनी ऑफ माय नेबर्स टू जॉइन नेटो, एंड दैट इज व्हाट इज आई वुड से अ थंब रूल और नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल फॉर रशिया करेंटली। ठीक है, सो यूएस सेक्रेटरी का कहना है, एक और बात यहाँ पे खुल करके आई है कि यूएस सेक्रेटरी हैज स्टेटेड दिस फैक्ट कि नेक्स्ट टाइम, अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप एंड पुतिन हैज नॉट मेट ईच अदर, द ऑफिशियल्स ऑफ यूएस एंड ऑफिशियल्स ऑफ रशिया हैव मेट ईच अदर, सो दे आर स्टेटिंग कि नेक्स्ट टाइम व्हेन डोनाल्ड ट्रंप एंड पुतिन आर मीटिंग, अभी उसका टेंटेटिव डेट भी नहीं पता है, बट वंस दे आर मीटिंग लेट अस आल्सो पूल इन यूरोपियन यूनियन एज वेल एज यूक्रेन। सो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज रिक्वेस्टेड कि let us allow Ukraine also to come and participate in this discussion because it involves peace with respect to Ukraine. So we want all the participating countries जो भी इससे affect हो रहे हैं वो सारे countries इस negotiating table पर होने चाहिए। ठीक है, so that was the communication, ये summary of the communication with respect to Ukraine between US and Russia। ठीक है, अब यूक्रेन इस मीटिंग को अटेंड किया तो नहीं, but where was Ukraine? Zelensky was meeting Recep Tayyip Erdogan, who is the president of Turkey. So Ukraine has been meeting Turkey. अब टर्की का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? टर्की जोग्राफिकली वी नो इज सिटिंग इन बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। तो यूक्रेन जितने भी सीरियल्स बेचता है टू यूरोप, इट क्रॉसेस थ्रू टर्की, सो टर्की इज द रेवेन्यू जनरेटर आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो टर्की भी चाहता है कि यूक्रेन पीस में आ जाए, सो दैट वंस यूक्रेन इज एट पीस इट विल स्टार्ट रीबिल्डिंग एफर्ट्स, और ये जो सीरियल का ट्रेड है ये फिर से स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो टर्की हैज ऑलवेज नेगोशिएटेड पीस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। टर्की खुद भी एक नेटो मेंबर है, बट टर्की हैज बीन नेगोशिएटिंग विद बोथ द साइड्स, और पहले भी प्रिजनर एक्सचेंज करवाया है टर्की ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर आल्सो was responsible for prisoner exchange। ठीक है, so similarly एक बार फिर से यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैज विजिटेड टर्की stating that I went and spoke with him about prisoner exchange. We want my prisoners in the Russian jail to be back to my country. So ये negotiations के लिए यूक्रेन was in Turkey। ठीक है, when US and Russian delegates were talking to each other in Riyadh। ठीक है, अब ये मीटिंग भी खत्म हो गई है, वो मीटिंग भी खत्म हो गई है। Now after few days Zelensky will be traveling to Riyadh and we will see what will be the further consequences of this meet। ठीक है, so this was the summary of the current relationship between US and Ukraine। We must know this fact
कि यूक्रेन वाज अबाउट टू जॉइन नेटो, यूक्रेन का प्लान था कि इट विल जॉइन नेटो, और इसके लिए बिल पास हुआ था, बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कैबिनेट ऑफ, इन द पार्लियामेंट ऑफ यूक्रेन, और इसी के खिलाफ रशिया हैड waged a war against Ukraine. ठीक है, so that was the summary of all of this discussion. Now coming to an important initiative that we are starting with respect to mains answer writing for the upcoming mains exam. This is known as Impact 2025. So under this program, we will be carrying out regular answer writing sessions. और इस answer writing आपको every day test देने पड़ेंगे, every day answer writing sessions होंगे, और उसका analysis होगा, उसका evaluation होगा, and on that basis evaluated answer you can meet your mentors, get the feedback and keep on improving your answers so that you can be very well prepared for mains much before mains. ठीक है, plus the added advantage here is all the subjects of mains will be covered under this test series. ठीक है, under this program initiative of answer writing series. ठीक है, so that is Impact 2025. but we have one more program कि अब तक अगर आपका prelims का revision थोड़ा slow चल रहा है, तो इसे ड्रैग करने के लिए, इसे और जोर से खींचने के लिए, टू पुल दिस एफर्ट, वी आर इनिशिएटिंग अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड यूपीएससी फॉर कंपाइलेशन सीरीज फॉर प्रीलिम्स 2025. कंपाइलेशन सीरीज में सारे सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और पिछले एक साल में उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, वो सारी चीजों को हम लोग एक क्रैश कोर्स के फॉर्म में समराइज करेंगे. ठीक है, so that you are able to cover your brush up your subjects very fast. ठीक है, with that we come to the end of this video. I wish you all the very best and thank you so much.